every soul's purpose is to evolve, go to the next level. Where, and when I'm using the word next level, again it's a loose word, क्योंकि next level for you and next level for me can be two different things. So we don't know what is your next level and I don't know what is my next level and all that. So but ये पक्का है कि आपको भी next level पे जाना है और मेरे को भी next level पे जाना है. एक कॉस्मिक खेल है, एक कॉस्मिक खेल है कि परमात्मा से ही सारी आत्मा निकली है और उसी में जाके मर्ज हो जाए. पर ये निकलने और मर्ज होने के बीच में जो टाइम है, इसमें द दैट द ये आत्मा जो है ये प्यूरिफिकेशन वाले फेज से गुजरती है. अब क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि खेल है. इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ प्ले, नथिंग मोर देन दैट. So as soon as this happens, as soon as this completes, the levels are going to reset and the game is going to start all over again. It will, this game will never stop. It will continue. So when you are making the contract, you are aware कि इस जन्म में what is the level I am aiming to achieve, what life lessons I need, what kind of setup I need in order to push me to that level. तो ये सेट हो जाता है. The soul is aware कि मुझे next level कहाँ जाना है. Your body, mind, intellect is not aware of it. The soul is aware of it कि मुझे ये next level ये है मेरा, और ये अचीव करने के लिए मुझे ये टाइप की हार्डशिप्स या ये टाइप के जरूरी नहीं हार्डशिप्स हो सकता है कि अच्छा भी हो कुछ कि बढ़िया है ऐसे में. तो आई नीड टू नाउ एक्सपीरियंस दिस. लेट्स call it experience. In this lifetime, I want to experience this. And in order to experience that, I need to have this kind of a setup. I need to have this kind of parents. I need to have this kind of environment and all that. ये पहले से सेट हो गया. Every soul travels in a soul group. The group, ऐसे समझो कि एक मीटिंग हुई आपकी बिफोर यू वर बॉर्न. एक मीटिंग हुई इनकी और उसमें डिसाइड की, the higher selves decide कि we will play this part in your life. And this is where we say कि people who have been playing the role of Ravan in your life actually have been doing favor to you. क्योंकि they are the real ones who pushed you. They were the ones who agreed कि I agree to be the bad person in your life. कि अच्छा तो सबको ही बनना है. वो बुरा बनने के लिए कौन रेडी हो रहा है और अपना हाथ खड़ा कर रहा है कि हाँ आई अंडरस्टैंड आशी, यू नीड टू गो थ्रू दिस लाइफ लेसन एंड उसके लिए आपको कोई तो, किसी को तो उंगली करनी पड़ेगी, तो आई विल डू दैट. तो हाथ पकड़ के आपको सपोर्ट देना होगा, उसके लिए तो सब लोग तैयार हो जाएंगे अच्छा बनने के लिए. लेकिन आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में, ताकि आपको ना लाइक वो कांटे चुभें, ताकि यू गेट अप एंड डू समथिंग अबाउट इट, उसके लिए सब लोग तैयार नहीं होंगे. Nobody wants to be that. So the souls that are agreeing to do that part, play that part in your role, are the ones to be thankful about. There is nothing to forgive them, forget about it. And ये जो हम terms use करते हैं, अगर आप अच्छी तरह से soul contract समझो और इसे समझो ना, ये सारी terminologies drop हो जाएंगी आपकी. Why would you use the word forgiveness for someone who is trying their level best to be the bad person in your life so you can be pushed? ये एक इमोशनली मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ही ये बात कर सकता है. क्यों?
क्योंकि when you go through that experience and you come out better, then only you can thank them. But if you are going through that experience and you are badly suffering, आपकी कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही, कुछ नहीं सीख रहे हो आप, बस रगड़ रहे हो, पेनफुल है, and you're just you just want it to end. अगर आप कुछ सीख नहीं रहे ना उससे, अगर अगर वो इंसान ने तो आपकी लाइफ में आग लगा दी है, लेकिन वो आग में अगर आप जल रहे हो, अम, निखर नहीं रहे हो, सिर्फ जल रहे हो, उस टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड अबाउट ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप मेरे को चप्पल मार के भगा दो कि क्या बकवास बात है. You will not qualify for this kind of knowledge. I hope you getting this. उस पॉइंट पे किसी के साथ ये बातें करना, दे विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इट टू इवन हियर. आप ये समझोगे ही नहीं, ये बात, ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में ही नहीं आएंगी, बिकॉज यू विल बी बैडली इन पेन फ्रॉम दैट पर्सन. जैसे क्या बकवास किए जा रहे, दैट पर्सन इज मेकिंग माई लाइफ हेल and you are asking me to be thankful to that person. You go to hell yourself. But if you have done the work, अगर आपने आप उस आग में निखरे हो, and you have become better, you come out, आपको ये मेरी बातें समझ में भी आएंगी, you will appreciate it and just say, हाँ सही बात बोल रही. What is there to forgive this person? उसने तो मेरे को फेवर किया. अगर वो आग नहीं लगाते तो मैं निखरता ही नहीं, मैं तो बैठा रहता ऐसे. उनके आग लगाने की वजह से ही तो आज मैं ये बना हूं. तो इसमें मैं फॉरगिव क्या करूं, फॉरगेट क्या करूं? आई शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन एवरी डे. फॉरगिविंग का तो अभी भी यही मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं तो मैंने उसका अपने दिल में रख रखा है कि ठीक है, आई बिकम अ गुड पर्सन एंड ऑल दैट. ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह से कैसे नहीं करना चाहिए था. इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स. You can't get to the point where you have got to by saying कि हाँ जहां मैं पहुंचा हूं वहां तो बढ़िया है, लेकिन ऐसे नहीं पहुंचना था, ऐसे भी तो पहुंच सकता था. अरे नहीं पहुंच सकते थे वैसे, ऐसे ही पहुंच सकते थे. So you have to be appreciative about the entire chain of events, not just only the last part. And if you fully understand this, if you fully connect with this, so you will also reach the same conclusion that there is nothing to forgive and forget. It's about thanking the other person. So now, as you are going through this, if you are required to remember certain pain, or perhaps maybe certain skills or whatever, if you are required to do that, then you will remember it. अगर वो आपके एवोल्यूशन, आपकी जर्नी के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आपको वो याद रहेगा. अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको याद नहीं रहेगा. अगर आपके सोल के कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा कि ये आपको आपकी जर्नी काफी मुश्किल होने वाली है और यू आर चूजिंग अ वेरी वेरी टफ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो चलो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आपके पिछले लाइफ टाइम से आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ कुछ आपको ये मदद मिलेगी इस चीज की कि इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम this kind of a thing, this kind of attitude or this quality or whatever that you have accumulated from your past works, you have been doing a lot of self work. और आप जैसे जैसे वो सेल्फ वर्क करते हो, तो जब हम ये संस्कार की बात करते, तो संस्कार सिर्फ मैं नेगेटिव बातों को ही तो नहीं बोल रहा हूं ना. सी, संस्कार इज बियॉन्ड आवर डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. इट्स एन इम्प्रिंट. जैसे मैंने उसको मनुष्य से बात करा था कि कोई फियर और इनसिक्योरिटी है जो आप बार बार शो कर रहे हो, इट्स गेटिंग हार्डन्ड, तो इट विल इम्प्रिंट ऑन योर सोल.
वैसे ही कोई पॉजिटिव क्वालिटी है जो आप बार बार डिस्प्ले कर रहे हो, इट विल ऑल्सो गेट हार्डर ना। तो इसको दोनों तरीके से सुनना है ना, इसको एक ही तरीके से नहीं सुनना है। अगर मैंने फियर और इनसिक्योरिटी बोला है तो इसका मतलब सिर्फ फियर और इनसिक्योरिटी ही हार्ड होती है, नहीं। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी तो मैंने वो बताया, बट यू गाइज नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑल्सो। माई पॉइंट वॉज कि वट एवर यू डिस्प्ले मोर गेट्स hardened. If it is fear and insecurity that you display more and more, it gets hardened. If it's a positive quality that you have picked and you display that in your, if you display a lot of patience, lot of understanding, lot of self awareness. If, so let's say I am asking you guys to be in the observer mode 24/7. Try to observe each and everything. Now, regardless of how your life is going, क्या हो रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कहाँ क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्वर मोड में, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। हर जगह पे कांस्टेंट क्या है? इंसिडेंट्स और कॉन्टेक्स्ट तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो आपका ऑब्जर्वर मोड है। तो दैट इज गेटिंग हार्डन। सो दिस इज बिकमिंग योर संस्कार, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। तो इफ दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू इन योर नेक्स्ट लाइफ, कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, अपने आप को खुद को पकड़ने के लिए और ये सब करने के लिए, ये ऑब्जर्वर मोड वाली क्वालिटी आपके बहुत काम आने वाली है। तो I'll give you this kind of, so maybe you're allowed to take this, free gift, free bonus इस लेवल में आपको ये, हम खेलते हैं ना गेम्स, जैसे हमने को वैसे मिलते हैं ना कि कुछ नेक्स्ट लेवल के लिए तुमने ये एक्यूमुलेट किया है, अब ये यूज कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे। तो दैट्स हाउ यू विल आइदर रिमेम्बर और नॉट रिमेम्बर, डिपेंडिंग ऑन कि आपको इस लेवल पे उस चीज की जरूरत। हाँ, यू माइट रिमेम्बर सर्टन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, कंसिडरिंग कि आपने ये बोला कि अ, हाँ, आई नीड अ हार्ड सेटअप, और इतना भी हार्ड मत करो, इतना पेनफुल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब थोड़े ठीक ऐसे, मतलब ऐसे माँ बाप हों जो इतने भी बेकार ना हो, तो somebody who's ये ऐसे हो, तो ठीक है, थोड़ी फियर और इनसिक्योरिटी पिछले वाले लाइफस्टाइल से कैरी कर लेते हैं, बट इतनी भी बुरी वो मत दे देना। मतलब ऐसा नहीं कि आई जस्ट गेट, आई एम बॉर्न इन ये धारावी में, तो एकदम स्लम्स वगैरह में मेरे को, आई डोंट वांट टू बी बॉर्न देयर। मेरे को ऐसा, मे बी मिडिल क्लास वाली फैमिली में आई बी बॉर्न, और थोड़ा फियर एंड इनसिक्योरिटी पिछले वाले में से आने दो। तो वहां से थोड़ा सा इधर से उधर से करके, हाँ, I'll create the ingredient and I'll then that will be enough to make my life hard in this life, and then I'll pass the level, try to pass the level from there। या फिर कोई ये बोलेगा कि यू नो बहुत हार्ड, इधर तुम्हें इतने हार्ड, इधर तुमने एकदम ये चीज चूज कर लिया कि यू विल बी बॉर्न ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑल दैट। चलो, तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारी पिछले वाली लाइफ से थोड़ा सा ये पॉजिटिव भी दे देते तुमको, यू विल रिमेम्बर दिस ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं इसका, कोई ऐसा आंसर ये नहीं कि क्या रिमेम्बर होगा क्या नहीं रिमेम्बर होगा, ये होना चाहिए वो होना चाहिए कैसे होना चाहिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, आपको क्या करना है, ओवरऑल पर्पस क्या है, सारी चीजें जान के हमने क्या एक्यूमुलेट किया है, क्या एक्यूमुलेट नहीं किया है, एंड ऑल दैट, यू यू स्टार्ट टू सी कि कैसे है। And many things you accumulate good also, a lot of self work that you have been doing in your past lives, that come forward, that become useful for you, um, in this life as well, that comes handy, especially the self work. So you will see key, the fears and insecurities you may not be too much aware of,
from your past lives. But the positive things you will be more aware of, because they will help you. They are the trophies that you have earned. तो वो आपसे छीनी नहीं जाती हैं, वो आपको दी जाती हैं, क्योंकि वो आपने मेहनत की है उसको एक्वायर करने के लिए, आपने खूब मेहनत की है। तो आपने वो जो ट्रॉफीज अर्न की है ना, वो आप देखोगे, आप अगर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो मेनी टाइम्स यू विल प्रोबेबली सी कि यू हैव ऑलरेडी बीन एक्टिंग और थिंकिंग लाइक दैट। तो आपने कोई नया कोई कॉन्सेप्ट सुना किसी से एंड ऑल दैट, एंड यू विल प्रोबेबली से, जैसे लेट्स से ओशो कोई बात कर रहे हैं एंड यू विल प्रोबेबली फील, बट ये तो मुझे पता था। आई हैव ऑलवेज वर्क थॉट लाइक दैट ओनली, आई हैव ऑलवेज बीन, ये तो मेरा बिलीफ सिस्टम हमेशा से ऐसा रहा है। हाँ, आई हैव हर्ड ओशो टॉकिंग अबाउट इट नाउ, बट दिस इज नॉट न्यू टू मी। आई हैव नोन दिस एंड आई हैव एक्टेड। परहैप्स मे बी आज ये ओशो की बात सुन के आई गॉट वर्ड्स फॉर इट, आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक दैट। बट ये जो बोल रहे हैं इसका जो एसेंस है या जो ये चीज है, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। ये तो आई हैव ऑलवेज लाइक फुल्ली कनेक्ट विद इट। तो वो आपकी पास्ट लाइफ के वर्क का वो है, कंक्लूजन है कि आपको ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हुई हैं, एंड you have them now to that comes to your aid, to take you to the next level। आपने जो कमाया है ना, ये सब जो कमाया है ये आपके साथ ही आता है, ये ब्लॉक नहीं होता है।